چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جناح ہاؤس پر حملے کی مذمت کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی مذمت کی تھی اور اب بھی جناح ہاؤس پر حملے کی مذمت کرتا ہوں اور اس واقعے پر ہر پاکستانی مذمت کر رہا ہے اور جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو اپنا گھر کھول کر دکھا دیا، دہشت گردوں کے ٹھہرنے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں، خوف کی فضا میں ملک نہیں چل سکتا، 7,000 لوگوں کو گرفتار کر کے پی ڈی ایم خود پھنس گئی ہے، اسی بنیاد پر کہا تھا کہ ایک ہفتے میں معاملات درست ہو جائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت کا ووٹ بینک ہو اور اسے ہرایا نہیں جا سکتا، اتنے ووٹ بینک رکھنے والی جماعت میں کسی کے آنے جانے سے جماعت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یک طرفہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، ہم تو 11 ماہ سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، عمران خان کا بالآخر مذمتی بیان سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جناح ہاؤس پر حملوں کی مذمت کرتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی مذمت کی تھی اور اب بھی جناح ہاؤس حملے کی مذمت کرتا ہوں اور اس واقعے پر ہر پاکستانی مذمت کر رہا ہے، جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو اپنا گھر کھول کر دکھایا ہے، دہشت گردوں کے ٹھہرنے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں، خوف کی فضا میں ملک نہیں چل سکتا، 7,000 لوگوں کو گرفتار کر کے پی ڈی ایم خود پھنس گئی ہے، اسی بنیاد پر کہا تھا کہ ایک ہفتے میں معاملات درست ہو جائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت کا ووٹ بینک ہو، اسے ہرایا نہیں جا سکتا، اتنے ووٹ بینک رکھنے والی جماعت میں کسی کے آنے جانے سے جماعت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یک طرفہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، ہم تو 11 ماہ سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ مذمتی بیان سامنے آیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے۔ لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی مذمت کی تھی اور اب بھی جناح ہاؤس حملے کی مذمت کر رہا ہوں، اس واقعے پر ہر پاکستانی مذمت کر رہا ہے، جو کچھ ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میڈیا کو اپنا گھر کھول کر دکھا دیا، دہشت گردوں کے ٹھہرنے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں، خوف کی فضا میں ملک نہیں چل سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 7,000 لوگوں کو گرفتار کر کے پی ڈی ایم خود پھنس گئی ہے، اسی بنیاد پر کہا تھا کہ اس ہفتے میں معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو عمران خان نے بالآخر مذمت کر دی ہے جناح ہاؤس پر حملے کی اور کہتے ہیں میں نے پہلے بھی یہ مذمت کی تھی اور اس واقعے پر ہر پاکستانی مذمت کر رہا ہے، جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو اپنا گھر کھول کر دکھا دیا، دہشت گردوں کے ٹھہرنے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، خوف کی فضا میں ملک نہیں چل سکتا، 7,000 لوگوں کو گرفتار کر کے پی ڈی ایم خود پھنس گئی ہے اور اسی بنیاد پر کہا تھا کہ ایک ہفتے میں معاملات درست ہو جائیں گے۔ سانحہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث مبینہ دہشت گردوں کی گرفتاری کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ لاہور پولیس نے گزشتہ رات فرار کی کوشش کرنے والے 6 مزید دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سی سی پی او لاہور نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ گرفتار دہشت گردوں میں سے 2 کور کمانڈر جبکہ 4 عسکری میں حملے میں ملوث تھے۔ آپ کو بتائیں کہ اس طرح دہشت گردوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ زمان پاک میں موجود دہشت گردوں کی تلاش کے لیے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمشنر کی سربراہی میں وفد آج پہنچ رہا ہے۔ زمان پاک دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اہلکار زمان پاک کی تلاشی کا حصہ بنیں گے یا نہیں، تو زمان پاک کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اہم یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے شیراز نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شیراز، بتائیے گا کہ آج کی کیا حکمت عملی طے کی جا رہی ہے؟ جو جناح ہاؤس حملے میں اور عسکری ٹاور جلانے میں ملوث تھے ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حسن جوید بھٹی جو ایس پی سول لائن ہے، انہوں نے کہا کہ مال روڈ کے گرد وہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 8 افراد کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا جبکہ آج 6 افراد کی تصدیق کی گئی ہے۔ اگر ہمارے کیمرہ مین آپ کو یہاں سے دکھا سکے تو ہم زمان پارک میں موجود ہیں جہاں سے عمران خان ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکل کر گئے ہیں اور سیکیورٹی کے یہاں پر سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ آج 2 بجے جو کمشنر لاہور کی سربراہی میں حکومتی نمائندوں کی ایک ٹیم یہاں پر پہنچے گی جو عمران خان سے مذاکرت کرے گی۔ جس طرح پہلے بھی صوبائی وزیر نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر 40 سے زیادہ دہشت گرد جو مبینہ دہشت گرد جو جناح ہاؤس میں ملوث ہیں وہ موجود ہیں، عمران خان خود ان کو حوالے کر دیں۔ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ اسی حوالے سے جو ٹیم ہے کمشنر لاہور کی سربراہی میں یہاں پر پہنچ رہی ہے اور وہ مذاکرات یہی کیے جائیں گے۔ جس طرح تصدیق کی گئی ہے کہ 14 افراد جو ملزم ہیں
जनाह हाउस में और अस्करी टावर में उनको हिरासत में लिया गया। तो बाकी जो मुलजम शनाख्त की गई है जियो फेंसिंग से और वीडियो के जरिए उनको हमारे हवाले किया जाए। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो 400 पुलिस एहलकार, जिस तरह सूबाई वजीर और आईजी पंजाब और CCP लाहौर ने भी तस्दीक की कि वो साथ होंगे और उनको अगर इजाज़त ना दी गई तो वो ज़बरदस्ती भी चेक करेंगे। इस हवाले से इमरान खान का ये कहना है कि उनके पास सर्च वारंट होना चाहिए तो फिर मैं तलाशी दूंगा। यहाँ भी एक पुलिस एहलकार जो है वो मौजूद है जो कुरान पाक लेकर यहाँ पर आया और उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके अलावा हम आपको और भी दिखाएंगे कि यहाँ के जो मनाजर है यहाँ को आज सुबह भी इमरान खान ने एंटी टेररिस्ट कोर्ट जाने से पहले जो है वो अंदर आने की एक्सेस दी और रस्मी उनसे गुफ्तगू करके यही कहा था कि मैं खुद भी, जिस तरह आज उन्होंने अदालत में भी कहा है कि मैं मजम्मत करता हूँ जनाह हाउस की, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो कोऑपरेट कर रहे हैं किसी भी पुलिस अफसर से। इसी सिलसिले में आज जो है वो टीम यहाँ पर पहुँच रही है कि जो मुबैना मुलज़म जनाह हाउस और अस्करी टावर में पुलिस को मतलूब हैं वो हमारे हवाले किए जाएं। पुलिस का ये दावा है कि जो 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया वो पहले ज़मान पार्क में ही मौजूद थे और यहाँ से भागने के कोशिश के दौरान उनको हिरासत में लिया गया है। अभी कुछ ही देर पहले अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो घर है ज़मान पार्क का जहाँ पर सिक्योरिटी क्या पेशरफ्त होती है। बहुत शुक्रिया शहराज निज़ार, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे काबीना इजलास के हवाले से। तो शरपसंदों के खिलाफ फौजी अदालतें कायम करने की तैयारियां। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी काबीना कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से हालिया सूरत हाल में किए जाने वाले इक़दामात भी काबीना इजलास में ज़ेर गौर आने का इम्कान है। तो बड़ी अहम नौयत का ये वफाकी काबीना का इजलास है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी काबीना कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खसूसी सिद्दीक साजिद। सिद्दीक, इजलास जारी है, इस वक्त क्या अंदरूनी कहानी है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है और इसमें जो अहम तरीन एजेंडा है वो कौमी सलामती कमेटी का जो गुज़श्ता दिनों इजलास हुआ था उसके फैसलों की तौसीक है, जिसमें जो शरपसंद अनासर 9 और 10 मई को मुल्क में जलाओ गिराओ के वाक़यात में मुलव्वस थे उनके जो मुकदमात हैं वो फौजी अदालतों में चलाने के मुताल्लिक जो है वो फैसला किया जाएगा और उसकी अदब मंजूरी भी दी जाएगी। इस सिलसिले में वज़ारत दिफा और वज़ारत कानून और इंसाफ दोनों की जो ब्रीफिंग्स हैं वो इजलास में अब तक दी जा चुकी हैं, जिसमें उन्होंने लाहौर और रावलपिंडी में 5 इब्तदाई तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनके क़याम की तजवीज़ दी है। अब इस चीज़ के ऊपर गौर व किया जा रहा है कि क्या आर्मी एक्ट 1952 के तहत ही कार्रवाई को प्रोसीड किया जाए या फिर पार्लियामेंट के जरिए कोई नई कानून साजी करके फौजी अदालतें जो है वो कायम की जाए। तो इसके ऊपर अभी जो अरकान काबीना है उनके साथ मशावरत का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ जो मामला है वो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात कल ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से हुई थी, वाटर मार्केट और बिजली मंसूबे का इफ्ताह किया गया था, उस बारे में वो काबीना को एतमाद में लेंगे और साथ ही साथ काबीना कमेटी बराए कानून साजी और काबीना कमेटी बराए आपसे गाहे तफसीलात लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की, जो कहते हैं कि पंजाब पुलिस किसी को भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर सकती है, अदालती रिट को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। गिरफ्तारियों का मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, कानूनी है या नहीं फैसला अदालत ने करना है। मुज़ाकरात के लिए बहुत कोशिश की, बहुत सी बातों पर इत्तफाक हो गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात ख़त्म किए। कोई नहीं शिकस्त दे सकता अदालती रिट को। अदालत आइन के मुताबिक जब भी कोई हुक्म पास करती है, अगर एक सूबाई हुकूमत वो LPO के नीचे कोई ऑर्डर करती है या कहीं वहाँ कोई केस दर्ज होता है तो फिर दूसरे सूबे या इसमें वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस पाबंद है कानून के तहत उनको एक्सेस देने में। जो पंजाब हुकूमत ने किया है वो भी अब अदालत में है, सब जुडिस है, तो अदालत अब उनकी लीगैलिटी को देखेगी। मुज़ाकरात की बहुत कोशिश की थी हुकूमत की तरफ से, बहुत बदकिस्मती की बात है कि 2 मई को मुज़ाकरात जो मुनक़ता किए वो PTI ने किए, गवर्नमेंट ने नहीं किए थे। बात करेंगे वज़ीर आज़म के आज के दौरे के हवाले से। तो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज पेशावर जाएंगे, जहां वो 9 मई को शरपसंदों के हमले में तबाह होने वाली रेडियो पाकिस्तान की इमारत का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़रा और गवर्नर KP भी होंगे। वज़ीर आज़म को 9 और 10 मई के वाक़यात के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के मुतासरा फ़ौजी तनसीबात के दौरे का भी इम्कान है। तो आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पेशावर जाएंगे।
कि लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने इमरान खान के जलाओ घिराव समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 2 जून तक तौसील कर दी, जबकि जिल्ले शाह कत्ल केस समेत 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर फैसला भी महफूज कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ जिल्ले शाह कत्ल केस में जमानत से मुताल्लिक केस की समाअत से माजरत कर ली। लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने इमरान खान के जलाओ घिराव समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 2 जून तक तौसील कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी की दोबारा गिरफ्तारी पर आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए पीर को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदालतों के साथ मजाक किया जा रहा है, आईनी इदारे के अहकामात हवा में उड़ाए जा रहे हैं, अदालतों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। हम टॉक शोज में बैठकर खुद को डिफेंड नहीं कर सकते, अदालती रिट कैसे कायम रह सकती है, ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन धब्बे हमेशा रहेंगे। और अब बात करें पीपल्स पार्टी के इजलास की, तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास 3 बजे होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाएअमल पर बातचीत होगी। PPP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में पार्टी के मरकजी रहनुमा शरीक होंगे। रुख करेंगे सादिकाबाद का, जहां पर पाक फौज से इजहार यकजहती करने के लिए अंजुमन शहरियों की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में बच्चों समेत सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। रैली सादिकाबाद चंद चौक से शुरू होकर प्रेस क्लब जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शामिल अफराद ने हाथों में कौमी परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। सादिकाबाद शहर की फ़ज़ा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। रैली के शुरका का कहना था कि पाक फौज के लिए हमारी जान भी हाजिर है, पूरी कौम मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़ी है। वेलकम बैक। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने बिजली की कीमतों में 2 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में दरखास्त दायर कर दी है। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है, जिस पर नेपरा समाअत 31 मई को करेगा। के इलेक्ट्रिक ने भी बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी है, जिसमें माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 48 पैसे फी यूनिट इजाफा करने का कहते हुए समाही एडजस्टमेंट की मद में 5 रुपये 17 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर में हेपेटाइटिस की बढ़ती हुई बीमारी के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट साजी में हेपेटाइटिस सी की रोकथाम के लिए मेगा प्रोग्राम तरतीब दे दिया है। आइंदा माली साल के बजट में वज़ीर आज़म के हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम शामिल करने की तजवीज़ भी सामने आई है। आपको बताएं कि हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम 4 सूबों में शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम की मजमूई मालियत 74 अरब रुपए बता रहे हैं। आइंदा माली साल के लिए बजट साजी में हेपेटाइटिस सी की रोकथाम के लिए ये प्रोग्राम तब्दील दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया, बताएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर आज़म की जानिब से? जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो हेपेटाइटिस का मर्ज है वो इस वक्त है कि खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, जिससे जो आइंदा माली साल के लिए जो बजट साजी है उसमें हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए जो अहम इकदाम जो है वो किया जा रहा है। जराये का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत ने हेपेटाइटिस सी की रोकथाम के लिए एक मेगा प्रोग्राम तरतीब दिया है और जो आइंदा माली साल के बजट में वज़ीर आज़म के हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम को जो है इसमें शामिल करने की तजवीज़ भी दी गई है। इस प्रोग्राम के तहत जो है 2030 तक जो है हेपेटाइटिस सी से मुल्क से खत्म करने की भी तजवीज़ शामिल है। ताहम जो ये हेपेटाइटिस सी का प्रोग्राम है कि 4 सूबों और जो वफाकी दारुल हुकूमत है। बहुत शुक्रिया शबिया नकवी, आप हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। और खबर दें आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 9 और 10 मई के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई है। इजलास में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक कानूनी उमूर पर गौर करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के फैसले की तौसीक की गई है। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की भी तौसीक कर दी गई है। तो वफाकी काबीना का इजलास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 9 और 10 मई के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक साजिद, बताएगा क्या फैसले किए जा रहे हैं इस इजलास में? वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक 9 और 10 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसकी वफाकी काबीना ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लक तमाम जो कानूनी अमूर हैं उसके ऊपर भी तफसीली बातचीत का सिलसिला जारी है। वफाकी काबीना ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के फैसलों की भी तौसीक कर दी है, जिसके तहत जो कौमी इस्लामी कमेटी के गुज़श्ता दिनों फैसले किए थे उनकी मंजूरी दी गई है और फौजी तंजीमात पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे और काबीना अरकान ने इस बात पर इत्तफाक किया कि शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। बाद काबीना अरकान 9 और 10 मई के हमलों की मजम्मत की गई है। इस इजलास में बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद हमें अपडेट करने का। और अब रुख करेंगे शहर कायद का, जहां पर डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमेटी साउथ के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के बावजूद गुज़िश्ता माह की तनख्वाह अदा नहीं की गई। तो कराची में डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमेटी साउथ के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना है कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के बावजूद गुज़श्ता माह की तनख्वाह अदा नहीं की गई है। तो कराची में डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमेटी साउथ के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के बावजूद गुज़श्ता माह की तनख्वाह अदा नहीं की गई है। तो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमेटी साउथ के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं और तनख्वाहें ना मिलने पर यह एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के बावजूद गुज़श्ता माह की तनख्वाह अदा नहीं की गई।